at each of the four corners of side A each. So this is a square and there are the four corners. Let's say A, B, C and the fourth corner is D. A charge, and what is the magnitude of the charge that we have been asked to place? Plus Q. So at each of the four corners of the square A, B, C, D of side A each. So each side is A each. Is that clear? What are we doing? We are placing a charge plus Q. Am I clear? Any confusion to anyone? What charge must be placed at the center of the square? कितना charge मैं center of the square में place करूं? So I need to have the center. Where does the center of the square is? Center of the square is the intersection of the diagonal. Intersection of the diagonal. Now over here, we have already discussed this thing and I'm just repeating. How much is the diagonal? What is the size of the diagonal? Diagonal is always equal to the side root 2. Isn't it? Side root 2. तो क्या है साइड का? That is A root 2. अब ये कैसे है, क्यों है, कहां से आया, ये आपने जूनियर क्लास में सीख लिया था. अब यहां पे आके डिस्कस करने में कोई फायदा नहीं. And what is the, and if you remember, if this is C, this X is the center, so at this center what you need to do, you need to place some charge, some unknown charge, capital Q. Let's call it as capital Q. So we are placing an unknown charge, capital Q, at the center of the square, so the entire system remains in equilibrium. What does the term equilibrium means? Equilibrium means translatory equilibrium. And what does it signify? When does the translatory equilibrium comes in action? Whenever the F net is equals to 0. तो जब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मुझे यहां पर चार्जेस ऐसे प्लेस करने हैं, ऐसा चार्ज प्लेस करना है, so that the entire system comes in equilibrium, that means the net force acting on all the charges must be 0. Clear? So we have to analyze the forces that are acting on each and every charge. That's what we need to do now. And then what we need to do, we need to ensure that F net should become equal to 0. Let us see certain facts. Let us look at the charge, that unknown charge capital Q that we have placed. If you see, this is a plus Q and this is plus capital Q. Let's assume the charge nature is also the same. So this charge placed at the four corners, what they are going to do? This charge capital Q is going to repel this small q is going to repel plus Q capital charge in this direction. Yes or no? So the repulsive force is going to be there like this. ये किसका repulsive force है? तो इसको मैं FA से लिख देता हूं. Let us see FB क्या करेगा. FB भी तो repel करेगा, तो इसका FB का repulsive force इधर की तरफ. क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. अब देखो C का क्या होगा? C का भी रिपल्सिव फोर्स होगा, किधर की तरफ आएगा? क्लियर है? और D का रिपल्सिव फोर्स, all the forces I have marked. So if you see FA, FB, FC, FD, all the forces are equal in magnitude. Why? FA, FB, FC, FD, चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है. क्यों? कूलम्बियन कांस्टेंट. फिर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस. कौन से चार्जेस? चार्ज एट ए बी सी डी, चारों बराबर ही मैग्नीट्यूड के, सभी क्यू है. सेंटर में रखा हुआ चार्ज क्या है? दैट इज कैपिटल क्यू. और ये डिस्टेंस कितना है? इतना डिस्टेंस कितना है? a रूट 2 बाई 2, डायगोनल का आधा, तो a बाई रूट 2, दिस इज इक्वल टू a बाई रूट 2. तो अगर तुम देखो तो सेंटर पे जो तुमने अननोन चार्ज रखा वो ऑलरेडी क्या है? वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है. समझ में बात आ गई?
हाँ या ना? अब हमें क्या समझना है कि क्या जो चार्जेस वर्टेक्स पर रखे हैं वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, जो चार्जेस कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर पर रखे हैं वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। सेंटर वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पूरा सिस्टम को तुम इक्विलिब्रियम में चाहते हो, सेंटर वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में अभी नहीं बात हो रही है। यहां पे हम चाह रहे हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अभी हमें क्या समझ में आया, द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सेंटर is in equilibrium. Why? Because FA and FC are equal in magnitude and oppositely directed, hence they cancel out. FB and FD are also equal in magnitude but oppositely directed, hence they cancel out. F net becomes equals to 0 for the charge situated at the center. Is this clear to everyone? Let us try to analyze the force experienced by the charge at any one corner of the square. Now let's take any one corner of your choice. Let's say I am interested in taking the corner as say B. B वाले कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स फाइंड करते हैं। B के ऊपर कितने चार्जेस हैं जो कि फोर्स लगाएंगे? सोचो कितने चार्जेस हैं जो फोर्स लगाएंगे? 4। कौन कौन से? A वाला, D वाला, C वाला और ये सेंटर पे रखा हुआ चार्ज X वाला। क्लियर है? अब जरा सोच के बताओ, A वाला फोर्स किधर की तरफ लगाएगा? किधर की तरफ? इस तरफ, उस तरफ नहीं, नाम दो। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आई कैप, जे कैप, प्लस आई कैप। हाँ जी, टुवर्ड्स द राइट प्लस आई कैप। ये किसने फोर्स लगाया है? ए ने। मैग्नीट्यूड कोई बताएगा एफ ए का? एफ ए का मैग्नीट्यूड सी। चार्ज एट ए किस पेयर की बात कर रहे हैं? ए और बी पेयर की। चार्ज एट ए, चार्ज एट बी अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। सी चार्ज एट ए कितना है? क्यू। चार्ज एट बी कितना था? वो भी क्यू। डिस्टेंस कितना था? ए बी का स्क्वायर। सी क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी कितना था? ए स्क्वायर। किधर की तरफ लगा? टुवर्ड्स राइट, यानी कि आई कैप न्यूटन। चाहे टुवर्ड्स राइट लिखो चाहे आई कैप लिखो, साइंस के स्टूडेंट हो प्रिफर करूंगा कि आई कैप लिखो। क्लियर हो गई बात इतनी? So what we discussed कि what is the force that A applies on charge at B and in what direction? Is that clear? Now is there any other force that is going to be applied? Yes sir. Who's going to apply? C. In what direction will it be applied? Up, J cap, positive y axis. So let's draw that. Let's draw it in the diagram. So this जो C लगा रहा है ए बी के ऊपर, वो किधर की तरफ लगा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। दिस इज F ड्यू टू C। क्लियर है? अब भैया FC की वैल्यू क्या हो जाएगी? FC कूलम्स लॉ कहता है C चार्ज एट ए, चार्ज एट C और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। C Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस क्या है? BC का स्क्वायर। C Q स्क्वायर A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? J कैप N टुवर्ड्स अप। क्लियर है? क्या कंक्लूड करते हो तुम? कंक्लूड करते हैं FA मस्ट बी इक्वल्स टू FC। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस बराबर हैं। क्लियर है? और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। समझ में आ गई बात? एंगल कितना है? अब तुम्हें मालूम है अगर एक से ज्यादा फोर्सेस किसी भी चार्ज के ऊपर लगते थे तो हम उनका नेट फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाई? बिकॉज फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी, तो वी नीड टू ऐड देम वेक्टरली। ठीक है? अभी हम पहले इन दोनों फोर्सेस को सॉल्व करते हैं, इनका नेट फाइंड करते हैं। अभी भी मुझे दो फोर्सेस फाइंड करने बाकी हैं।
ठीक है, इन दोनों का भी मुझे क्या फाइंड करना है, वेक्टर सम फाइंड करना है। तो इनका वेक्टर सम फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मालूम है, एफ नेट इज इक्वल्स टू R1। किसकी वजह से, किनका एफ नेट निकाल रहे हैं, एफ ए एंड एफ सी का क्या फॉर्मूला होगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FA/FC cos 90 degree, because the angle between both the forces. So now what happens, FA कितना, CQ square by A square, FC कितना, CQ square. Now you know that there is a complex mathematics involved in CQ. We always used to assume them something. So what we are going to do, let's assume this entire big expression as simply as U. Clear है? तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन हमारे लिए बन रहा है, उसको हमने क्या मान लिया, सिर्फ U मान लिया। तो U स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री इज 0। समझदार हो, तुम लोग को सब मालूम है। तो क्या रिजल्ट बना, अंडर द रूट ऑफ 2U स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू U रूट 2। व्हाट इज U रूट 2, व्हाट इज वाज U, CQ square upon A square root 2. ठीक है, what will be the angle, 45 degree. Very good. How do you come on to this conclusion at 45 degree? I told you one theorem. अगर दो वेक्टर्स बराबर के मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है। Again I repeat, take it as a theorem. If two vectors are equal in magnitude, then their resultant always lie along their angular bisector. Is that clear? Taken a note of it. So this will be at 45 degree with horizontal. Is this clear? So what I have done now, see what I have done, I have been able to finish off with these two forces. I have combined them together, and by combining them together I have got a resultant. And what symbol I have written down the resultant? I am calling that as R1. And what is the direction of R1? At an angle of 45 degree with the horizontal line with the x-axis. Is that clear? Any confusion to anyone? Now, I have got rid of FA and FC. So what I am going to do, I am going to remove FA and FC. Since I have combined them together, so no longer I need them, I am rubbing it out for you all so that the figure does not get cluttered. अभी हमने FA और FC का रिजल्टेंट निकाल लिया है R1। अभी दो ही चार्जेस की वजह से फाइंड, अभी कौन कौन से चार्जेस बचे हैं, चार्ज प्लेस्ड एट D and the charge placed at X. क्लियर है? Can we find out the force due to D? Yes or no? Okay, let's do that. Force due to the charge at D. So what I am about to do, I am about to find out force due to charge placed at D. Force due to charge. What is the formula? Which law? Which law are we using? Name the law. Coulombian law. Coulomb's law. What that law says? C Q1. What is the Q1? Which two pairs? Which two pairs? B and D. Is that clear? And what is the distance between them? No, what is the distance? Abhi distance D square we will put as C, QB is Q, QD is also Q, and what is this distance? Abhi distance. This is BD. This is abhi presently we are calling this distance as BD square. Is that clear? We will substitute the value after this. So which value we are going to substitute? BD स्क्वायर का वैल्यू थोड़ी देर के बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो क्या निकला, सी क्यू स्क्वायर। व्हाट इज बी डी? दैट्स द डायगोनल। डायगोनल का वैल्यू अभी बताया था, साइड रूट 2, दैट इज ए रूट 2 का होल स्क्वायर। सो सी क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a square. Remember, CQ square by A square we have already given a name, U. So this is nothing but U by 2. And what direction will this force be? What is the nature? What's the nature? First try to identify the nature. Are the charges like? Are the charges unlike? Like charges? तो D जो force लगाएगा किधर की तरफ लगाएगा? किधर की तरफ लगाएगा? Along, इसे कैसे कहोगे? Along DB.
along DB. Along DB. Okay, the direction of this force that D has applied has been shown in the figure. This is the force that D applies along the diagonal DB. Along the diagonal DB. Is that clear? At an angle of 45 degrees. So this force is along the diagonal DB. That means it is parallel to what? This force D is parallel to resultant of FA and FC. R1 उस रिजल्टेंट को लिखा, तो अभी तो ये फोर्स बना दिया, हाँ या ना? क्लियर है? तो अब देखो नेट, टोटल नेट फोर्स, अब एफ नेट कितना है? जो चार्जेस तुम्हारे रखे हुए थे कॉर्नर्स पे, उनकी वजह से नेट फोर्सेस कितनी लग रही थी? एक एफ ने लगाई थी, हाँ या ना? एक एफ सी ने लगाई थी, हाँ या ना? और एक तीसरा चार्ज जो एफ डी पर रखा था उसने लगाई थी एफ डी, और एफ ए और एफ सी का जो नेट रिजल्टेंट था आर वन, अब इसका रोल तो खत्म हो गया क्योंकि इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो जो तुम्हारा चार्ज उस कॉर्नर बी पे रखा उसके ऊपर अब कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। कौन कौन से? आर वन जो कि एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट है, और एफ डी। सो अब ये एफ डी और आर वन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल कितना बना? 0 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन? एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल बिटवीन R1 एंड FD इज 0। और मैंने तुमसे क्या बताया? अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उन दोनों को डायरेक्टली ऐड करो। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री का होता तो उन दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो। यहां पर एंगल कितना है? 0। तो इन दोनों को अब ऐड करने वाले तो एफ नेट क्या हो जाएगा? सिंपल सम ऑफ R1 प्लस FD। सिंपल सम मींस अलजेब्राइक सम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? दैट इज U√2। यस और नो? एंड व्हाट इज द value of FD? U/2. If I take U common, you can see very easily I am getting √2 plus half Newton cap किधर? At an angle of 45 degree with horizontal। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? और U क्या था? CQ²/A² √2 plus half Newton। Clear है? Now this is the net force experienced due to the charges that are placed at the corners of this square. Can you see? At the corners of this square. Now due to this and this, so I am going to replace this FD and R1 and will call this force simply as F net। तो देखो अभी जो FD और R1 दिख रहा है इनको मैं रिप्लेस कर देता हूं इनके नेट रिजल्टेंट फोर्स से, और मैं रब कर रहा हूं FD और R1, और ये नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? इन व्हाट डायरेक्शन? इट इज एक्टिंग अलोंग द एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंड दिस इज द F नेट। क्लियर है ये बात? इतनी समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर इतना? जितना इस चार्ज के ऊपर एफ नेट लग रहा है उतना ही इस चार्ज के ऊपर भी एफ नेट लग रहा होगा, बिकॉज दे आर ऑल सिमिलरली। उतना ही इसके ऊपर भी एफ नेट लग रहा होगा, उतना ही इसके ऊपर एफ नेट लग रहा होगा। यस और नो? सो व्हाट यू आर फाइंडिंग that the charges which are placed at this vertex or at the corner of the square are experiencing a net force directed along the diagonals, hence they would like to fly off diagonally away। तो थोड़ी देर के बाद ये चार्जेस कहीं यहाँ आते हुए दिखेंगे, तो they are going to fly off diagonally away। Is that clear to everyone? बात समझ में आ गई? Now you want to keep these charges to remain in equilibrium। You want to keep the charges wherever they are, that means they should be remain in equilibrium। So what I need to do for that? I have already placed what? A charge at the center। अब देखो इसके ऊपर जैसे इनको हटा देते हैं, कंफ्यूजन कम कर दें। अब तुम चाहते हैं इस फोर्स को ओवरकम कर दो, इस फोर्स को बैलेंस कर दो।
इक्विलिब्रियम कब होगा? जब कोई ऐसा फोर्स इसको बैलेंस करे। तो बैलेंसिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, तभी तो नेट फोर्स जीरो बनेगा। सो जो बैलेंसिंग फोर्स आने वाला है, लेट मी यूज विच कलर, लेट मी यूज दिस पिंक कलर। ओके, सो जो ये बैलेंसिंग फोर्स आने वाला वो इस फोर्स के ऑपोजिट होने वाला। क्या है दिख रहा है? कलर विजिबल है? नहीं, मुझे नहीं विजिबल है, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं। हाँ, ये 5 मार्क्स का बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो बैलेंसिंग फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उसका डायरेक्शन इसके एफ नेट के ऑपोजिट। तो ये ऐसे दिख रहा है। अगर ये इसको नाम क्या दूंगा मैं? इसको नाम देने वाला हूं एफ बैलेंसिंग, एफ बैलेंसिंग। और ये एफ बैलेंसिंग किसकी वजह से आने वाला है? सेंटर वाले चार्ज की वजह से, यानी कैपिटल क्यू की वजह से, चार्ज दैट यू हैव प्लेस्ड एट एक्स। ठीक है, तो अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तब तो ये पॉसिबिलिटी है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ कैपिटल क्यू? इट शुड हैव अ नेगेटिव नेचर। ठीक है, सो इट शुड हैव, व्हाट शुड बी द नेचर? एज द बैलेंसिंग फोर्स, एफ बैलेंसिंग कैसे होना? एज द बैलेंसिंग फोर्स मस्ट बी opposite to F net, as the F balancing must be opposite to F net, therefore the nature of capital Q must be negative. नेचर समझ में आ गया? कैसा होना है? नेगेटिव। ठीक, तो एफ बैलेंसिंग कैसा होना चाहिए? एफ बैलेंसिंग मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होना चाहिए? एफ नेट के। और कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, इसलिए माइनस। क्लियर है बात? एफ नेट की वैल्यू तुम्हें पता है, हाँ या ना? और एफ बैलेंसिंग का निकालना है। अब एफ बैलेंसिंग फोर्स किसके किसके बीच में डेवलप होना है? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, चार्ज एट क्यू। तो एफ बैलेंसिंग का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? पहले फॉर्मूला बोलो, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? हाँ, उसका फॉर्मूला बोलो। तो एफ बैलेंसिंग क्या होगा? फॉर्मूला बोलेंगे सब कोई। एफ बैलेंसिंग विल बी सी क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस x से b तक, xb का होल स्क्वायर। समझ में आया? और xb की वैल्यू निकाल चुके हो। c कैपिटल Q स्मॉल q, व्हाट वाज द डिस्टेंस xb? देखो ये निकाली थी ना xb का डिस्टेंस, a√2/2, यानी a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या निकलेगा? सी क्यू क्यू a²/2, और ये 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? एफ बैलेंसिंग। तो ये बन जाएगा, एफ बैलेंसिंग बन के आ जाएगा सी क्यू क्यू, 2 ऊपर चला गया, अपॉन a²। समझ में आ गया है एफ बैलेंसिंग का मैग्नीट्यूड? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ बैलेंसिंग मस्ट बी इक्वल टू एफ नेट, हाँ या ना? और बैलेंस करने के लिए इसको डायरेक्टेड ऑपोजिट, तो क्या साइन होना चाहिए? माइनस का। एफ बैलेंसिंग की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी है? सी क्यू क्यू टाइम्स 2 अपॉन a²। एफ नेट की वैल्यू निकाल चुके थे, कितनी है? माइनस सी क्यू स्क्वायर अपॉन a²√2 प्लस हाफ। सी से सी कट गया, कैप स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कट गया, a² से a² कट गया, और तुम्हारे सामने आंसर चला आया q इज इक्वल्स टू माइनस q/2√2 प्लस हाफ कूलम। मैथमेटिक्स ने भी साइन बताया इस चार्ज का कितना होना है? नेगेटिव। हमने कंक्लूड भी क्या किया था? कितना चार्ज होना है? नेगेटिव। Is that clear? Have you all understood the solution? So to summarize the entire
aspect of this particular problem. Whenever the question has been asked to find the to make the charges in equilibrium, you need to find out the net force that is acting and then try to find out the balancing force. और जब तुम बैलेंसिंग फोर्स को निकालो तो दो चीजों को ध्यान रखना है, जो भी नेट फोर्स निकल रहा है वो उसके बराबर होगी और उसके ऑपोजिट होगी. So here we end this class today.